morning, my dear students. Today I am going to start your accounts subject 4 plus 1 class written by DK Goyal. In this video, I will upload all the solutions of all these chapters. Seeing here, first is theory, second is also theory, third is also fourth, fifth theory. We will upload only numerical proportions here. For example, sixth chapter is accounting equations. That is a whole by whole numerical chapter. And after that, we will upload books of original entry, journals, and after that again numerical chapter is cash book, special subsidiary books, numerical portions, lasers is also numericals, trial balance and errors is also numerical portion. I am trying to upload here only numerical portions, practical questions solution. Next is here is bank reconciliation. After that, bank reconciliation, depreciation, most important chapter G, bills of exchange, rectification of errors, and after that financial statements and financial statements with adjustments. And last practical chapter is yours, accounts from incomplete records. We are here trying to upload the solutions of all these chapters only, and today I am going to upload the solution of bills. Chapter name is bills of exchange. Very easy, very simple chapter. Today we are going to upload the numerical portions. First of all, we will upload the introduction part, and after that essential practical questions. Now we are going to on that particular chapter, bills of exchange. bills of exchange accounts की book में this is the chapter of bills of exchange in your accounts plus 1 accounts DK Goyal book. It is all for CBSE students and HBSE, all can do from here. Okay, I am trying to upload all the numerical portions. Suppose of that, here is the practical questions. Question number 1, 2, 3, 0, 30 are strictly in the serial order of illustrations. Total 30 questions given here, and I will upload here topic wise. Suppose of that, first topic is date of maturity and days of grace. Most important and most easy. Just आपको करना क्या है, आपको जो मंथ्स नेम है, लीप ईयर्स है, गस्टर्ड हॉलीडेज है, नेशनल हॉलीडेज है, इनकी नॉलेज थॉरोली होनी चाहिए. ठीक है जी. फर्स्ट टू 30. First of all, we will upload the introduction part. Name of the topic is date of maturity and days of grace. How many questions we will see here? First question is also from this part, and next question is also. Second question is also from this topic. Third is retaining the bill till due date. We will cover in next video. Still here we will cover only first and second questions solution. See here very carefully. This is the question. Calculate the due dates of the bill in the following cases. But before going to that thing, you will see here the introduction about the chapter, bills of exchange chapter. इन डेट्स क्वेश्चन ऑलवेज एट 3 days. बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में आपने 5-6 मेन पॉइंट्स है जो बस लर्न करने हैं, उसी के बेसिस पे आपका पूरा चैप्टर आप गो थ्रू कर सकते हो, सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. 3 मैच्योरिटी डेट के आफ्टर बाद 3 days यू विल बी ऐड हेयर. सेकेंड बात, एमरजेंसी हॉलीडेज़ क्या होती है, पब्लिक हॉलीडेज़. एमरजेंसी हॉलीडेज़ के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं पता होता. सपोज ऑफ दैट एमरजेंसी स्ट्राइक हो जाना, कर्फ्यू लग जाना, मिस हैपनिंग हो जाना, किसी पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो जाना. अगर कुछ इस टाइप का केस है, जो ड्यू डेट है हमारी विद ग्रेस पीरियड +1 कर दिया जाएगा. ठीक है, मतलब सक्सीडिंग डे काउंट होगा. उस दिन हम बिल की
जो बिल की ड्यू डेट है उसमें वन डे ऐड करके पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडेज वी ऑल आर अवेयर इन एडवांस। फॉर एग्जांपल 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, हमें पता है सभी को, ऑल दीज आर नेशनल हॉलीडेज। अगर आपकी बिल की पेमेंट की ड्यू डेट 26 जनवरी को है या 2 अक्टूबर को है या फिर 15 अगस्त को है, तो इट मीन्स इसमें वन डे प्रीवियस कर दोगे आप, प्रीसीडिंग डेट। 26 जनवरी का मीन्स आप पेमेंट करोगे 25 जनवरी। 2 अक्टूबर का मीन्स आप पेमेंट करोगे 1 अक्टूबर। 15 अगस्त का मीन्स आप पेमेंट करोगे 14 अगस्त। ओके गाइज, ये तो आपके लिए जो टॉपिक हमारा स्टार्ट करने वाला डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस के लिए कम्प्लीटली थॉरोली बेनिफिशियल है, जो ये पॉइंट्स अभी हमने अच्छे से करे। नेक्स्ट एक आपने ध्यान रखना लीप ईयर का। पेमेंट के ईयर्स कौन से हैं, उसमें सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखोगे कि 2004 आप सभी को पता है कि लीप ईयर कौन से होते हैं, ठीक है जी। 4 ईयर्स का डिफरेंस होता है। अगर लीप ईयर्स है, उस लीप ईयर में वो पेमेंट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे में पेमेंट होएगी, वो ध्यान रखना बस, जस्ट आपने लीप ईयर का। आफ्टर दैट जी आपने, हमें सभी को कई बार नहीं एकदम से ध्यान में आता कि कौन सा मंथ कितने डेज़ का है। आप ये अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हो इस वे में, नोट्स या जो भी कुछ, जहाँ पे भी आपकी अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है CS फाउंडेशन के कोर्स में, कॉमर्स के कोर्स में, आर्ट कॉमर्स में, ठीक है जी, अकाउंट्स में, कहीं पे भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अगर आपको चैप्टर है देन यू कैन मेंटेन नोट्स एज लाइक नाइस, ठीक है जी। ये हमने फिस्ट बनाई है अपनी, उसके ऊपर जैसे हम कैलकुलेट करते थे आप इस वे में इसी को ऐसे ड्रॉ करके, सो दैट कि आपको लर्न रहे ये सब कुछ। ये तो था जी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो। जनवरी के 31 डेज, फरवरी के मार्च और अप्रैल और मई अप टू दिसंबर। फिर से एक बारी देख लिए लीप ईयर कौन सा है, ठीक है जी। ये यहाँ पे देखिए 28 डेज़ या फिर लीप ईयर 29 डेज़। फिर से देखिए हमने क्या क्या लर्न करना है इसमें। जस्ट आपने 3 डेज़ ग्रेस पीरियड के ऐड करने हैं जब बिल की पेमेंट होनी है। एमरजेंसी डेज ध्यान में रखने हैं। पब्लिक गस्टेड हॉलीडेज़, नेशनल हॉलीडेज़ ध्यान में रखनी है। जो पब्लिक हॉलीडेज़ है, नेशनल हॉलीडेज़ है, ओनली हम काउंट करते हैं ये तीनों ही, बिकॉज ऑफ दैट ये 3 की 3 फिक्स हैं। जैसे दिवाली, होली, ये फिक्स नहीं है, इनकी डेट्स फिक्स नहीं है एक्चुअली, बट ये तीनों ही फिक्स है, इसलिए हम इनको नेशनल हॉलीडेज़ काउंट करते हैं, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट है जी आपका लीप ईयर का, आप ध्यान रखोगे। ये तो था जी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम चलते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल्स इन द फॉलोइंग केसेस। डेट ऑफ द बिल्स पीरियड 1 फरवरी 2017। अब इसी के अकॉर्डिंग देखो, आपने बहुत ध्यान से जस्ट आपने कंसेप्ट ट्राई करना है फॉलो करने की, समझने की, और अकाउंट्स में कुछ नहीं है, जस्ट कंसेप्ट ही है, वो भी प्रैक्टिकल, जो हम अपने सराउंडिंग में ऑलमोस्ट डेली देखते हैं, ठीक है जी। डेट ऑफ बिल ड्रॉन प्लस पीरियड प्लस ग्रेस पीरियड इज इक्वल टू डेज। डेज यानी कि जो ड्यू डेट हमने कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास आ जाएंगे। देखिए 1 फरवरी 2017, आफ्टर 2 मंथ, उन्होंने कहा है 2 मंथ के बाद हमारे बिल की पेमेंट कर देना, ठीक है जी। अपनी जिस पार्टी ने क्रेडिट माल लिया है, गुड्स लिए हैं, उसने पेमेंट करनी। तो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है, जब हम कोई गुड्स क्रेडिट सेल या परचेज करते हैं, बस उस केसेस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिएट होता है। बिल्स ऑफ पेमेंट या फिर बिल्स ऑफ रिसीवेबल, रिसीव करने जो अमाउंट रिसीव करता है वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। जिसको पेमेंट की जाती है, मतलब जो पेमेंट करता है वो BP की पेमेंट करता है, बिल्स पेएबल की पेमेंट करता है। और 2 टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काउंट होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है,
और जो रूटीन में हमें यूज़ होता है, देखते हैं सब जगह, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। और दोनों के जो परफॉर्माज है, स्पेसिमन कॉपी है, हल्का सा डिफ्रेंशिएट है दोनों में, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप हम पूरे चैप्टर में गो थ्रू करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि BR और BP की ही बात हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। देखो 1 फरवरी 2 मंथ्स, यानी कि आराम से देखिए 1 फरवरी, 1 मार्च तो एज इट इज़ लिख देते हैं, उसके बाद 1 मार्च 1 अप्रैल एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि 1 फरवरी आपने यहाँ डेज कुछ नहीं देखने कितने हैं, क्योंकि उसने जस्ट ये बोला 2 मंथ्स, जस्ट आप ये लिखोगे 1 मार्च 1 अप्रैल। अब इसको स्टॉप लगाना है, लगा लेना है हल्का सा, ठीक है जी। प्लस ग्रेस के 3 डेज ऐड कर देंगे, तो हमारी ड्यू डेट क्या आ गई जी, 4 अप्रैल 2017। ये ध्यान रखना है 17, ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर होता तो मे भी हमें कोई प्रॉब्लम आ सकती थी, इस बात का ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है जी 31 जनवरी 2017। सभी क्वेश्चंस आपने ऐसे ही इस सीक्वेंस में कैलकुलेट करने हैं, ठीक है जी। यही स्टेप फॉलो करते हैं। कौन सा, डेट ऑफ बिल ड्रॉन प्लस पीरियड प्लस ग्रेस डेज, ठीक है, तीनों को ऐड करके फिर हमारी ड्यू डेट ऑफ बिल आएगी, ठीक है जी। ऐसी थर्ड देखिए, और देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th पीरियड गिवन है, ठीक है, सभी के सभी आप एज इट इज़ कैलकुलेट कर लोगे। देखिए 1st, 2nd, आफ्टर दैट 3rd, 4th, ये भी ध्यान से करना। 3 मंथ्स है, सितंबर है, सितंबर के बाद जस्ट एज इट इज़ लिखते जाना, अक्टूबर, 30th नवंबर, 30th दिसंबर, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। देखो कैसे ऐड करेंगे, ध्यान दो इस बात की तरफ। 4th क्वेश्चन देखिए, 30 सितंबर, 30 सितंबर गिवन है, 30 हम प्रोसीड करेंगे, पर आपको बताया कि बाय चांस 30 दिसंबर आ गया। 30 दिसंबर में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। यहाँ से एक दिन हमारे पास बचा हुआ है, एक डे, ठीक है जी। हमने 3 डेज ग्रेस के ऐड करने थे, तो हम क्या करेंगे, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस करेंगे। पर 3 डेज हम 3rd जनवरी तक नहीं जा सकते, क्योंकि एक दिन दिसंबर का बचा हुआ है, 2 डेज हम जनवरी के उठाएंगे। ध्यान से देखिए, ये जो साथ में कुछ हिंट टाइप लिखा हुआ है, इनकी तरफ भी ध्यान देना, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। 2 जनवरी 2018, ये भी ध्यान रखना, अभी मेरे से भी मिस्टेक होने वाली थी। 2017 को तो कवर अप करते करते 2018 आ गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं, सेम ईयर फिर लिख देते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा 4th नंबर पॉइंट है। ऐसे देखिए जी 5th लीप ईयर आ गया, ध्यान रखना इस बात का, जस्ट आपके लिए हिंट। 5th देखिए जी, फिर आप 5th, यस, ठीक है जी। आपने जो 4th देखा, ठीक है, उसके बाद 5th देखिए, ये जो साथ में हिंट टाइप लिखे हैं, इनको भी गो थ्रू अच्छे से करना है, यहाँ से बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी आपकी। 5th देखिए, 5th को पहले से ही अपने दिमाग में सेटिंग बिठा के चलनी है कि जजमेंट कर देनी है। एक्चुअली डाटा को ऑब्जर्व करना होता है, एनालिसिस करना होता है। क्या करेंगे, देखो 29 दिसंबर आ गया, दिसंबर से हम फटाफट जजमेंट करेंगे कि हाउ मैनी डेज इन द मंथ, ये अपने माइंड में रखेंगे फटाफट से, ठीक है जी। फिर ईयर जज करेंगे, 2017 है, लीप ईयर है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर फटाफट से सेटिंग करेंगे कि हाँ भी ड्यू डेट पेमेंट की, बिल पेमेंट की कौन सी बनी। 29 जनवरी है, उसके बाद 28 फरवरी है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर 2 मंथ बिल की पेमेंट करनी है। वो पहली देखो 29 जनवरी हमने उठा लिया, नेक्स्ट 28 फरवरी, 29 तक जा ही नहीं सकते थे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डेज ऑफ ग्रेस के लेने होंगे, तो 3rd मार्च ये हमारा इस टाइप में आ जाएगा। आप ऐसे ये सभी कर लेना बेटा, ठीक है जी। 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, ठीक है। ये देखना 7th का सोल्यूशन है, फर्स्ट क्वेश्चन के ही पार्ट्स हैं बेसिकली ये। और नेक्स्ट जी एक पोर्शन और है गया, ये देखिए, ये है जी अपना पार्ट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट नंबर 8th।
लीप ईयर है ये भी, फर्स्ट मंथ, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, 27 फरवरी है, किस टाइप में लेंगे, 3 डेज़ की सेटिंग करके लेंगे। सेटिंग कैसे करेंगे ये देखिए आपके सामने कैसे प्लस किया, 28 फेब प्लस 29 फेब प्लस 1 मार्च, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है कि किस टाइप में हमने क्या किया है, क्योंकि 27 फेब था और हमें पता है कि 29 फेब तक जाना था। 2 डेज़ हमने फेब के उठा लिए और 1 डे जो और था वो मार्च का ले लिया। इट मीन्स हमारी ड्यू डेट क्या होगी जी, 1 मार्च 2016। डन, यहाँ तक हो गया जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी है सभी, बट थोड़ा सा ट्राई करना है कंसेप्ट को समझने की और प्लस थ्योरी ज़रूर रीड करना, उससे बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। देखिए सभी की हिंट गिवन है, हिंट तो गिवन है, बट आप सभी को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये इतना यहाँ पे ये डेट्स कैसी आई हैं। सेकंड देखिए जी क्या करें, फाइंड आउट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल्स इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें कहीं ना कहीं एमरजेंसी हॉलीडेज़ या गस्टेड हॉलीडेज़ का केस होगा, है सेम, ठीक है, जो फर्स्ट वाला था, बट फर्स्ट वाले में टोटली मंथ्स वगैरह ही थे, यहाँ पे मंथ डेज भी गिवन है, सेम फर्स्ट के जैसा ही है। देखिए कैसे आप सेकेंड ऑप्शन इस टाइप में कर सकते हो, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने फर्स्ट जैसा करना है या सेकंड जैसा करना है। आप फर्स्ट जैसे भी कर सकते हो, सेकंड जैसे भी कर सकते हो। आप इस टैबुलेटेड वे में, टैबुलर, ठीक है जी, इस ऐसे बनाकर बॉक्स बनाकर भी कर सकते हो। सीरियल नंबर, डेट्स ऑफ बिल्स ड्रॉन, गिवन पीरियड्स, ठीक है, मतलब हमें क्या पीरियड मिला था पेमेंट करने का, कैलकुलेशंस फिर हमने कैसे करी। ये मेरी, ठीक है, ये कंजस्टेड होगा थोड़ा सा, आपने लैंडस्केप करके रजिस्टर को फिर मेंटेन करना है। ये क्वेश्चंस जो हैं, ड्यू डेट्स हमारी आ गई जी, ठीक है। देखिए आफ्टर दैट सेकंड फिर से देखिए 31 मार्च 2017 लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, ठीक है, 31 लास्ट डे होता है तो 1 मंथ ऐड करेंगे, 30th अप्रैल प्लस 3 डेज, 3 मई 2017, ऐसे जी थर्ड देखिए 21 जुलाई 2017, 60 डेज़, उन्होंने डेज़ बोले 60 डेज़, डेज़ मीन्स डेज़ ही काउंट करते चलोगे, 60 का मतलब 2 महीने, 2 मंथ्स मत सोच लेना, ठीक है, क्योंकि देखिए 21 जुलाई है, 21 के जुलाई के बाद आप देखिए कि कितने दिन जुलाई के बचे हुए पड़े, अभी 10 डेज़ जुलाई के हैं, 10 डेज़ तो हम वो काउंट कर लेंगे, उसके बाद कितने डेज़ रहे, 10 डेज़, 50 डेज़ अभी बैलेंस रहे, 50 डेज़ के बाद प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट मंथ की तरफ, जुलाई, आफ्टर दैट जुलाई व्हाट कम्स, जुलाई अगस्त, ठीक है, अगस्त के डेज़ उठाएंगे कंप्लीटली 31 डेज़, 31 ये हो गए, 10 ये हो गए, कितने हो गए 41 डेज़ हो गए, 19 डेज़ अभी लेफ्ट रहे, 19 डेज़ के लिए हम कहाँ प्रोसीड कर जाएंगे, सितंबर के मंथ में, वो भी कर दिया, प्लस 3 डेज़ ग्रेस के ऐड करेंगे, 19 डेज़ ऑफ सितंबर प्लस 3 डेज़ ऑफ ग्रेस, इट मीन्स 22 सितंबर। अब और क्या प्रॉब्लम आ गई जी, 22 सितंबर को एमरजेंसी हॉलीडे आ गई, तो इट मीन्स 22 सितंबर प्लस 1 डेज फॉर द एमरजेंसी हॉलीडे, सो दिस इज़ द रीज़न वी विल नाउ सक्सीडिंग डे, हमारा जो पेमेंट का डे आएगा वो सक्सीडेड डे होगा, यानी कि 23 सितंबर 2017। बहुत ध्यान से देखना, इजी से क्वेश्चन है। जैसे नेक्स्ट है जी फोर्थ, देखिए 90 डेज़, आपने 3 मंथ नहीं सोचना, ये याद रखनी है बात, पूरे 90 डेज़ ही काउंट करने हैं। सबसे पहले 14 मई है, इसके डेज़ देखिए कि और कितने बैलेंसिंग है हमारे पास, टोटल 17 डेज़ हैं बचे हुए इसके, प्लस नेक्स्ट मई के बाद मई, जून के 30 डेज़ वो हो गए, जून के बाद क्योंकि 90 डेज़ है, 90 डेज़ हमने कंप्लीट करने हैं और चलते जाना है, बस अपने आप ही हमारे पास आंसर हमारे पास नियरेस्ट पहुंचने वाला हो जाएगा। जब हमारे पास पूरे कंप्लीट डेज हो जाएंगे उसके बाद हमने 3 डेज़ ऐड कर देने हैं। देखिए अब 15 अगस्त आया, फोर्थ क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में 15 अगस्त आया। 15 अगस्त आपको पता है पब्लिक हॉलीडे होती है, पर इससे क्या करेंगे, हम सभी को अपने आप में अवेयर है कि हमें पता है नेशनल हॉलीडेज़ है, तो हमें पेमेंट 14 अगस्त को करनी पड़ेगी प्रोसीडिंग डेज़ में, क्योंकि देखो जब कोई मिस हैपनिंग होती है, थर्ड क्वेश्चन में एमरजेंसी हॉलीडेज़ आई, इसका नहीं किसी को एडवांस में पता होता, पर फोर्थ क्वेश्चन है जो पब्लिक या नेशनल हॉलीडेज़ होती है वो तो सभी अवेयर होते हैं, सभी को पता ही होता है वो तो, ठीक है जी, इसी वे में फोर्थ होगा। फिफ्थ भी देखिए जी, इसी वे में फिफ्थ भी कर लेना आप,
लास्ट डे ऑफ द मंथ, ओनली जस्ट 1 मंथ है, बट 1 मंथ तो है, यहाँ देखना है जनवरी में क्या है, 28 जनवरी 2016 है, आफ्टर 1 मंथ। ये ध्यान रखना कि अगर इन्होंने ना 1 मंथ बोला है तो हमने कुछ नहीं सोचना कि किसके कितने दिन है या नहीं है, जस्ट हमने प्रॉपर एकदम से 1 मंथ शिफ्ट कर जाना बस। देखिए अब 1 मंथ है, अगर देखा जाए तो जनवरी में कुछ स्टार्टिंग के डेज में नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, हमने देखा था कि जैसे 31 दिसंबर वाला क्वेश्चन था कि 1 डे बचा हुआ है, जब एंड के दिनों में हम पहुंचने वाले होते हैं तब वो काउंट होते हैं डेज। स्टार्टिंग में तो 1 मंथ है, स्किप कर देंगे एकदम से, जनवरी स्किप करके 28 ऑफ फरवरी में आगे बस। उसके बाद हमें जो ग्रेस वगैरह पीरियड चाहिए होते हैं वो ले लेंगे हम, 2nd डे ऑफ मार्च यानी कि 3 डेज, ठीक है। 28 फरवरी एक दिन इसका बचा हुआ है वो उठा लेंगे, प्लस 2 डेज हम मार्च के मंथ के ले लेंगे, इट मीन्स 3 डेज हो गए हमारे। ये हमारा 2nd ऑफ मार्च आंसर आ गया, ठीक है। 1 डे तो इसी का बचा हुआ था हमारे पास। चलो जी नेक्स्ट और लास्ट 6th क्वेश्चन, 31 ऑफ जनवरी 2016। अब फिर इसमें भी देखिए जी, अब इसमें बाई चांस कम डेज हैं चाहे ज़्यादा हैं, हमने कुछ नहीं देखना। 1 मंथ मीन्स 1 मंथ, जस्ट हम 31 ऑफ जनवरी है, स्किप एकदम से प्रोसीड कर जाएंगे 29 ऑफ फरवरी। बाई चांस 29 ऑफ फरवरी 29 डेज हैं, ठीक है, प्लस 3 डेज ऑफ मार्च यानी कि 3 डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं अभी तो फिलहाल हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे 29 ऑफ फरवरी है, ना कुछ कम ना ज़्यादा, प्लस एग्जैक्टली 3 डेज उठा लेंगे यहाँ से यानी कि मार्च के, और हमारी ड्यू डेट क्या आ जाएगी जी, 3 मार्च। लास्ट डे में जस्ट 3 डेज हम ग्रेस के ऐड कर देंगे। और आप इस क्वेश्चंस को इस वे में भी कर सकते हो, आप अपनी नोटबुक्स पे जो नोट्स मेंटेन करोगे उस पर ये 3rd को डिटेल में इस टाइप में लिखा जी, आप भी इसी टाइप में उसको मेंटेन कर लेना अपने नोट्स को। 3rd वाला क्वेश्चन है कि कैसे हम डेज को लेस ऐड करते हैं, और इसके बाद 4th को देखिए जी, ये देखिए, ठीक है जी। इसी के साथ ही आप